everybody, this is me Urva. Hopefully you're all enjoying good health. Welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to discuss the topic what is right and its types and what is duty in a very simplified manner. So now let's understand what is right proposed by the various eminent jurists. Before starting my discussion, I request to all of you please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for the more informative lectures regarding law. According to Professor John Salmon, right is an interest which is recognized as well as protected by law. Here the word interest means acquisition of benefit or repulsion of loss. Acquisition of benefit means something that is getting you benefit. A repulsion of loss means the loss is going away from you. मतलब कि इंटरेस्ट वो चीज जिससे आपको फायदा हासिल हो रहा है और नुकसान आपसे दूर जा रहा है। अब ये जो इंटरेस्ट है ये रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्टेड बाय लॉ है, मतलब कि आपका जो लीगल सिस्टम है वो इसको रिकॉग्नाइज भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है बाय इन्फोर्समेंट एजेंसी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स ग्रांट्स किए हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आर्टिकल 9 है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 23 है राइट टू प्रॉपर्टी। अब आर्टिकल 23 क्या कहता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। कि मतलब कोई भी जो शख्स है वो पाकिस्तान का जो शहरी है वो अपनी प्रॉपर्टी को ऑन कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है। अब अगर उसकी इंफ्रिंजमेंट होती है तो आर्टिकल 199 के तहत जो है वो आप हाई कोर्ट में जो है वो रिट फाइल कर सकती है। तो राइट को रिकॉग्नाइज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर इस राइट की वायलेशन होती है तो उसके लिए एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी बनाया गया। इफ एनीवन वायलेट्स आवर राइट्स, लॉ ग्रांट अस अ रेमेडी वेयर्स वंस राइट इज इन्वेडेड or destroyed, the law give a remedy to protect it or damages for its loss. Further, where one right is denied, the law affords the remedy of an action for its enforcement. Next, we will discuss the second jurist perspective. According to Rudolph von Jering, rights are legally protected interests. अब यहाँ पे Rudolph von Jering के मुताबिक जो है वो right जो है वो legally protected interest है। I will give you this with a basic simple example. In right itself, you know, there is something which is bound within yourself that is right. For example, there is a moral right in terms of relationship. You are married your own wife. Any person who you like to marry at such point of them, you have a moral right to love over them, and that is your right. But tomorrow, that is a divorce between you and your wife. Suppose you have to pay the maintenance for it, and that is legal right for you. Did you observe the something called as difference between a moral right and a legal right? So, a moral right which is basically bound with your own principle, with your own life values, can be having a moral right, and that is not questionable. If you're not following a moral right, also is not questionable, but there are the certain kinds of legal rights. For example, these legal rights you really bound to do it. Got it? In bound to do it, that you are enforceable to it. For example, I am giving my house to you for stay at such point of time. You are bound to pay the rent for me. That called as your legal right. Next हम एक Latin maxim को discuss कर लेते हैं. Ubi just IBI remedium. This legal maxim was first enunciated by the William Blackstone, and ubi just IBI remedium means where there is a right, there is a remedy. It means where law has established a right, there should be a corresponding remedy for its breach, and the right to remedy is one of the fundamental rights historically recognized in all legal systems. Next, we will discuss the different kinds of rights. First of all, I will implicate the term right in rem. Right in rem are those rights which is available against the whole world and the person generally. And these rights are negative rights, and they are considered the absolute right. मतलब right in rem ऐसे rights होते हैं जो कि आपको अगेंस्ट द होल वर्ल्ड अवेलेबल होते हैं। आपका ये जो राइट होता है ये जनरल पब्लिक के लिए होता है। मिसाल के तौर पर जो है वो ए हैज अ राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट ऑफ रेपुटेशन। मतलब एक इंडिविजुअल को अपनी रेपुटेशन के ऊपर जो राइट होता है उसको कोई डिफेम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर उसकी रेपुटेशन के ऊपर उसका जो राइट है वो ये राइट इन रेम है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो उसे डिफेम नहीं कर सकते। तो राइट टू रेपुटेशन क्या हुआ? राइट इन रेम हुआ। अब तो ये जो राइट इन रेम होते हैं दे आर कंसीडर्ड द एब्सोल्यूट राइट्स। अब एब्सोल्यूट राइट्स इन दैट because they are enforceable against anyone who interferes with the property regardless of whether that person has any relationship with the property owner. अब फॉर
एग्जाम्पल इसको हम इस तरह देख लेते हैं, जो राइट ऑफ पोजेशन और ऑनरशिप है वो भी राइट इन रैम की एग्जाम्पल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल X has a house, the people of the world have a duty not to interfere with his ownership. Nobody has a right to disturb his ownership. Yeah, for example, I have money in my pocket. I can use my money as God. The world at large has no right to interfere with my possession. तो ये था हमारे पास right in rem. In this kind of right, we can exercise our right against a particular person. और जितने भी कॉन्टेक्चुअल राइट्स होते हैं वो हमारे पास राइट इन पर्सोनम होते हैं। कॉन्टेक्चुअल राइट्स आर द मोस्ट बेसिक राइट्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज द राइट इन पर्सोनम। और इसके अलावा जो है वो राइट इन जो पर्सोनम है ये दिस राइट इज यूजुअली बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल, if you have a contract with a company to provide the services, you have a right in personam to be paid for that services. The company has a responsibility to pay you for the work you have done, and if they fail to do so, you can enforce your right to be paid through a legal means. और ये जो right in personam है ये relative rights होते हैं, मतलब because they are enforceable only against a specific person, only against a मतलब कि एक खास शख्स के अगेंस्ट ही आपका ये जो है वो राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना घर रेंट पर दिया है और अब आपने रेंट वसूल करना है। आप रेंट उसी पार्टिकुलर पर्सन से वसूल कर सकते हैं जिसको आपने जो है वो अपना घर रेंट पे दिया है, मतलब किसी और से नहीं। आप जो है वो अपनी गली मोहल्ले के दूसरे लोगों के पास जाके नहीं कह सकते कि आप रेंट दें, नहीं, क्योंकि आपका ये जो राइट इन पर्सोनम है ये सिर्फ एक पार्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ही आपको अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हम जो है वो जो हमारे पास काइंड ऑफ राइट है वो है पॉजिटिव राइट और नेगेटिव राइट। तो अब हम पॉजिटिव राइट को देख लेते हैं कि पॉजिटिव राइट्स क्या होता है। पॉजिटिव राइट्स आर दोस राइट्स व्हेन सम एक्शन नीड्स टू बी डन बाय द पर्सन हु हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी। मतलब इसमें ये होता है कि पॉजिटिव राइट्स में ये होता है कि एक्ट्स ऑफ कमीशन, मतलब वो राइट जिसका कोरिलेटिव ड्यूटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। जैसे हमें पता है कि एक राइट हो तो उसके कोरिलेटिव एक ड्यूटी एग्जिस्ट करती है। पॉजिटिव ड्यूटी से मुराद कभी आपको कहा जाता है कुछ काम करो, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है बाय लॉ दैट यू हैव टू डू समथिंग, तब हम कह सकते हैं कि वो जो ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन जो है वो पॉजिटिव होगी, मतलब कुछ करने को कहा जाए। मिसाल के तौर पे ए ने एक लैंड खरीदी और उसके अंदर एक बिल्डिंग बनाई, अब बी को रेंट के ऊपर दे दिया। अब यहाँ पर बी टेनेंट बना, अब ए बोलेगा कि आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मुझे रेंट पे करो, मतलब पे करने को बोल रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ड्यूटी हुई। तो वहां पर कोरिलेटिव राइट क्या हुआ, पॉजिटिव राइट होगा तो बी की पॉजिटिव ड्यूटी हुई और कोरिलेटिव राइट वहां पर पॉजिटिव राइट है। मतलब इसमें ये होता है कि सामने वाले इंसान को कुछ करना होता है, मतलब सामने वाले इंसान के पास जो है पॉजिटिव ड्यूटी होगी और मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव राइट होगा। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात कर लेते हैं नेगेटिव राइट की। तो नेगेटिव राइट में जो है वो एक्ट ऑफ ओमिशन होता है, मतलब दोस राइट्स व्हिच omit the person from performing the certain act and the person on whom the duty lies has to refrain from some act। मतलब ऐसा राइट जिसका कोरिलेटिव ड्यूटी नेगेटिव हो, नेगेटिव ड्यूटी से मुराद जब हमें कुछ करने से मना किया जाता है, मतलब लॉ हमें फॉरबिड करता है कि आपने ये काम नहीं करना, मतलब कि आपने कुछ ऐसा नहीं करना। फॉर एग्जांपल, ए ने एक लैंड खरीदी, अब लैंड के ऊपर उसका राइट है तो किसी भी इंसान को मना कर सकता है कि उस लैंड में एंटर ना करे। बी को वो कह सकता है कि मेरी लैंड है, तुम इसमें इंटरफेयर ना करो, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि मेरे लैंड में ट्रेसपास ना करे, तो ना करे, तो ये एक नेगेटिव ड्यूटी है। तो अगर नेगेटिव ड्यूटी हुई तो उसका राइट क्या होगा, नेगेटिव राइट होगा। ऐसा राइट जिसका कोरिलेटिव ड्यूटी नेगेटिव है तो उसको हम कहते हैं दैट इज योर नेगेटिव राइट। अब नेगेटिव राइट जो है ये जनरल पब्लिक में होते हैं, मतलब ये राइट इन रैम होते हैं। Next we will discuss the perfect right and imperfect right. Perfect right, these are those rights which are recognized as well as protected by law, and an action can be taken against the wrongdoer by filing a suit in court of law for the breach of it. मतलब कि ऐसा राइट जिसे हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवा सकते हैं, जिसे रिकॉग्नाइज भी किया है लॉ ने और प्रोटेक्शन भी दी है। ऐसा राइट जिसमें रेमेडी आपके पास अवेलेबल होती है, इन्फोर्समेंट प्रोसीजर अवेलेबल होता है, इसे हम परफेक्ट राइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, A has a perfect right to recover loan from B and B has a perfect duty to pay the amount of loan to A. If B fails, then A can file suit against him in court of law for the recovery of loan. तो ये था हमारे पास perfect right. Next है imperfect right. Imperfect rights are those rights corresponding with the imperfect duty which cannot be enforced by law but it is recognized by law. अब ये जो imperfect rights होते हैं ये ऐसे rights होते हैं जिसमें हमारे पास रेमेडी अवेलेबल नहीं होती। राइट तो होता है लेकिन हमारे पास कोर्ट में जाने का प्रोसीजर नहीं होता। ऐसा राइट
जिसे हम इन्फोर्स ही नहीं करवा सकते, जिसे रिकॉग्नाइज तो किया है बट नो व्हाट एक्शन। मिसाल के तौर पे ए ने बी को 10,000 रुपए दिए और बी ने बोला मैं 3 माह बाद आपको वापस कर दूंगा। ए ने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, 3 माह बाद या 1 साल तक जो है वो उसने वापस नहीं किए, ए ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ए ने जो है वो 5 साल 10 साल बाद जाके एक सू फाइल किया कोर्ट में कि बी को बोले मेरे 10,000 जो रुपीज है वो वापस करे। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, कोर्ट ने कहा कि हम आपका ये जो राइट है इसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते बिकॉज लिमिटेशन एक्ट के अंदर आपका जो है वो एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम है, उसी के अंदर जो है वो आप जो है वो सूट को जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये जो आपका राइट है ये इन्फोर्सेबल नहीं है। तो टाइम बार डेप्ट हो गया है, तो बेसिकली इसी को हम कहते हैं इम्परफेक्ट राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं राइट इन री प्रोप्रिया और राइट इन री अलेना। अब राइट इन री प्रोप्रिया क्या होते हैं, those rights which are free from the encumbrance and third party claims। यानी कि जो राइट इन री प्रोप्रिया होता है ये ऐसे राइट्स होते हैं जो फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस होते हैं, मतलब यहाँ पर इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का जो क्लेम है वो नहीं होता। अब फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस मीन नो वन एल्स हैविंग any right over something when property is owned by someone and nobody else has any right over it. It is owned free of the encumbrance। अब इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसे अपनी मर्जी से सेल आउट कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब कोई भी रुकावट नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई स्टे नहीं है, आपने मॉर्गेज नहीं की हुई, फ्री है, जिसे हम कहते हैं राइट इन री प्रोप्रिया। फॉर एग्जांपल ए द ओनर ऑफ द 10 cents ऑफ लैंड, ए इज द राइट ऑफ ओनरशिप इज राइट इन री प्रोप्रिया। नेक्स्ट है राइट इन री अलेना। राइट इन री अलेना दोस राइट्स दैट आर इनकम्बर्ड एंड नॉट फ्री फ्रॉम द थर्ड पार्टी क्लेम। ये जो राइट इन री अलेना होता है ये राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन अदर पर्सन होता है, मतलब इसमें ये होता है कि ऐसा राइट जो किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी के अंदर होता है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और का राइट बन जाता है। जब आपकी प्रॉपर्टी तो होती है लेकिन उसके ऊपर थर्ड पार्टी क्लेम होता है, उसके ऊपर कोर्ट का स्टे होता है या इंजंक्शन होता है, इसे हम कहते हैं राइट इन री अलेना। यानी कि ये इनकम्बेंट प्रॉपर्टी है, इनकम्बेंट कहते हैं जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई रुकावट हो। अब राइट इन री प्रोप्रिया के अंदर कोई रुकावट नहीं होती, सिंपली आपने ये याद रखना है। और अलेना के अंदर जो है एक रुकावट होती है, प्रॉपर्टी आपकी है, राइट आपका है, पहले आप उस रुकावट को जो है वो रिमूव करेंगे। तो ये था हमारे पास राइट इन री प्रोप्रिया और राइट इन री अलेना। अगर री अलेना की मैं एग्जांपल दूं तो ये है कि एक प्रॉपर्टी है मेरी और मैंने मॉर्गेज की हुई है, अब मेरा उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो राइट इन री अलेना। नेक्स्ट हम प्रोप्राइटरी राइट्स और पर्सनल राइट्स की बात कर लेते हैं। तो प्रोप्राइटरी राइट्स क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी राइट्स आर दोज राइट्स which are transferable and valuable and ये जनरली रिक्वायर्ड होते हैं। बेसिकली प्रोप्राइटरी राइट्स आर दोज राइट्स which are pertain to wealth, मतलब ऐसे राइट्स जो हम हमारे एस्टेट या एसेट्स के ऊपर होते हैं, ऐसी चीजों के ऊपर होती हैं जिसका कोई मॉनेटरी या इकोनॉमिक वैल्यू होता है, जैसा कि आपका राइट ओवर योर लैंड, ओवर योर कार, तो ये आपका प्रॉपर्टी राइट है। नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल राइट्स। तो पर्सनल राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच आर पर्टेन टू वेल-बीइंग, सोशल स्टेटस एंड डिग्निटी and these are not valuable and transferable but these rights are conferred by law। मतलब कि ये जो पर्सनल राइट्स होते हैं ऐसा राइट जो आपकी डिग्निटी का, आपके सोशल स्टेटस का, आपकी वेलबीइंग का और आपका कोई मतलब कि इसमें राइट टू हिज फ्रीडम, लिबर्टी, सिक्योरिटी आ जाता है, मतलब आपको कोई डिफेम ना करे, आपकी डिग्निटी को कोई वायलेट ना करे, इसे हम कहते हैं पर्सनल राइट्स। यानी कि जब आपके कैरेक्टर का राइट आ जाए, उसका कोई मॉनेटरी या इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता। तो ये थे हमारे पास प्रोप्राइटरी राइट्स एंड पर्सनल राइट। लास्ट में हम बात कर लेते हैं वेस्टेड राइट और कॉन्टिजेंट राइट की। तो वेस्टेड राइट क्या होते हैं, अ राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल इवन नेसेसिटी टू vested completely in the owner has happened। ये जो vested right होते हैं ये fully finally and unconditionally vested in the owner, मतलब कि ये ऐसे right जो fully finally और unconditionally एक owner में वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक घर खरीदा, जैसे ही मैंने घर खरीदा मैं उस चीज का ओनर बन गया, मेरे अंदर जो है वो एक राइट वेस्ट हो गया। अब उसके ऑपोजिट जो है वो एक कॉन्टिजेंट राइट है, मतलब कि अ राइट इज कॉन्टिजेंट व्हेन नॉट ऑल ऑफ वेस्टेड फैक्ट्स हैव अकर्ड। मतलब अब इसके ऑपोजिट जो है वो कॉन्टिजेंट राइट होते हैं जो कि किसी इवेंट के ऊपर, किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि अगर ये इवेंट अगर होता है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आप उस चीज के ओनर बनेंगे। जब तक वो कंडीशन और वो इवेंट जो है वो अकर नहीं होता तब तक आपके ऊपर उसका जो है वो कॉन्टिजेंट राइट होगा, ना कि वेस्टेड राइट। मिसाल के तौर पर एक बंदे की डेथ हो जाती है,
अब अपनी वफात से पहले वो एक जो है वो विल बना के, वो एक वसीयत बना के चला जाता है कि इन केस मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी प्रॉपर्टी जो है वो मेरी बीवी के पास जाएगी। अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस लॉ, इसके मुताबिक इसकी डेथ के बाद इसकी बीवी के पास जो है वो उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। और वो अपनी वसीयत में वो कंडीशन ये रख देता है कि अगर मेरी बीवी ने दूसरी शादी कर ली तो मेरी ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरे बच्चों के पास चली जाएगी। अब हस्बैंड की डेथ होने के बाद बीवी के पास वेस्टेड राइट हो गया था इस प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब राइट बीवी में वेस्ट हो गया था। अब जब तक बीवी दूसरी शादी नहीं करती उसके बच्चे जो होंगे उनके पास कॉन्टीजेंट राइट होगा प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे बीवी जो है वो शादी कर लेगी तो वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो राइट बीवी से बच्चों में वेस्ट हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, होप सो आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।